Hello everyone, I am Ritika Juzgar, Assistant Professor IT Department. So yesterday we started our Unit 5, that is Distance and Rule Based Model, where we already discussed what is mean by distance based model, distance matrix, distance functions. Okay, so in this video we discuss about the types of distance based model. There are various types of present: Euclidean, Hamming, Manhattan, Minkowski and so on. Okay, so we discuss these models one by one. So let us discuss. Minkowski distance. Okay, so this is a distance is Minkowski distance is a metric in the normed vector space. So what is the normed vector? The normed vector space is a vector space on which a norm is defined. So suppose X is a vector space, then a norm on X is a real valued function, okay, vector of X, which satisfy the below condition, that is zero vector, that means zero vector will have zero length. Scalar factor, the direction of vector doesn't change when you multiply it with a positive number through its length will be changed. And triangular inequality, if the distance is norm, then the calculated distance between 2 points will always be straight line. Okay, so this Minkowski distance is generalized form of Euclidean distance and the Manhattan distance. So Minkowski distance calculate the distance between the two real valued vectors. Okay, यहाँ पे हम vectors use करेंगे. Vectors जो भी दो real valued होंगे x1 y1 हो सकते हैं, x2 y2 हो सकते हैं, उसमें से हम vector consider करेंगे. So it is a generalization of Euclidean and Manhattan distance measure. Okay, generalized form of a Euclidean and Manhattan distance measure, and add a parameters called the order or a p that allows the different distance measure to be calculated. अगर हमारे जैसे मैंने बोला था टू वैल्यूड वेक्टर होंगे, दो पॉइंट्स होंगे a एंड b, अगर पॉइंट्स है हमारे पास, सो उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे मीन कॉस की डिस्टेंस. सो वहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे p. सो p की वैल्यू वैरी हो सकती है, p की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, देयर आर मल्टीपल p वैल्यूज आर प्रेजेंट. सो p की वैल्यू को हम वैरी कर सकते हैं. सो p दैट अलाउज द डिफरेंट डिस्टेंस मेजर्स टू बी कैलकुलेटेड. सो a टू b का डिस्टेंस, जैसे p की वैल्यू डिफरेंट होगी वैसे उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके, सो जैसे कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, डेटा सेट है, ये वाला एक डेटा सेट है. तो ये जो डेटा सेट होगा वो अगर A, ये होगा B. तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, बाय यूजिंग द मीन कॉस्की डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पे P पैरामीटर यूज किया जाता है. So P that allows the different distance measure to be calculated. जैसे जैसे P की वैल्यू हम चेंज करेंगे वैसे वो डिस्टेंस वैरी होगा. P इक्वल टू 2 कंसिडर कर सकते हैं. सो अगर P इक्वल टू 1 है तो उसका डिस्टेंस ये होगा फॉर P इक्वल टू 1. अगर P इक्वल टू 2 है तो इसका डिस्टेंस कुछ इस तरह से हो सकता है फॉर P इक्वल टू 2. अगर P की वैल्यू 3 है सो डिस्टेंस ऐसा हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरामीटर P. यहाँ पे भी ओके ऐसे ये वाले साइड से भी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज अ मीन कॉस की डिस्टेंस. सो उसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है उसका. I इक्वल टू 1 to n, summation of I equal to 1 to n. If you are having the n number of set x1, y1, x2, y2, x3, y3, हर एक के लिए हमें यहाँ पे यूज करेंगे p in bracket 1 divided by p. Okay, so this is a
formula for this mean Minkowski distance. So Minkowski distance is generalized distance metric. Generalized means what? So here we can manipulate the formula here to calculate the distance between two data points in the different way. So generalized means what? यहाँ पे जो हमने ए और बी का डिस्टेंस है उसको मेनी वे से फाइंड आउट कर रहे हैं. नॉर्मली अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस वगैरह यूज करते हैं सो हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा. पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हमें ए टू बी का डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. सो वहाँ पे इसका डिस्टेंस तो पता है, इसका डिस्टेंस भी पता है, सो हम यहाँ का डिस्टेंस पता कर सकते हैं. बस ये वैल्यू हमारी फिक्स होगी. जनरलाइज मीन्स व्हाट? मिनकॉस्की डिस्टेंस यूज करके हम पी की वैल्यू को जैसे चेंज करेंगे वैसे उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा. ओके, सो दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म. So by using the generalization, we can manipulate this formula to calculate the distance between the two data points in the different way. So as I said, we can manipulate the value of p and calculate the distance in three different ways. जैसे p की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे हमें फाइंड आउट होंगे पता चलेगा कि डिस्टेंस क्या होगा दो डेटा पॉइंट्स का. अगर p इक्वल टू 1 रखते हैं सो दिस इज अ मैनहट्टन डिस्टेंस. देन p की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यूक्लिडियन डिस्टेंस मिलेगा और p की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखते हैं तो चेबिशेव डिस्टेंस मिलेगा. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है, चेबिशेव डिस्टेंस क्या है, हैमिंग डिस्टेंस भी क्या है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, तो आया समझ में व्हाट इज दिस मिनकॉस्की डिस्टेंस? बट ये जो मीन कॉस्ट की डिस्टेंस है उसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है. यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, वैरी होती है. सो मीन्स हमें प्रॉपर डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मीन्स करेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है. ओके, सो हियर वी आर यूजिंग द पैरामीटर पी. इट कैन एक्चुअली द troublesome trouble for getting the distance, fixed distance value, or to work with and finding the right value can be quite computationally insufficient, okay, inefficient, okay, depending on the value of p. The second thing is the Manhattan distance. So this is another distance metric or distance measure type. So Manhattan distance, also called as the taxi cab distance or the city block distance, calculate the distance between the two real valued vectors. So it is more useful to vectors that describe the object on a uniform grid like a city block. Okay, ये देखो ये city block. ये अगर हमारे पास एक गिवन सिटी है तो यहाँ से अगर यहाँ तक रीच करना है तो ये वाला एक ऐसा डिस्टेंस हो सकता है, इस तरह से भी डिस्टेंस हो सकता है और ये इस तरह से भी डिस्टेंस हो सकता है. ओके, सो मैनहट्टन डिस्टेंस contain the object describe the object on the uniform grid like a city block. So Manhattan distance is calculated as the sum of absolute difference between the two vectors. Okay, so हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. एक्स एंड ये एक डेटा पॉइंट है, ये सेकंड वाला डेटा पॉइंट है, सो इसका डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. कैलकुलेट द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू डेटा पॉइंट्स एक्स एंड वाई. सो मैनहट्टन डिस्टेंस कब यूज करेंगे? सो वी यूज द मैनहट्टन डिस्टेंस इफ वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स इन द ग्रिड लाइक फॉर्म. ओके, in the grid like form.
So distance d will be calculated using the absolute sum of difference between its Cartesian coordinates as below. Okay, distance कैसे find out करेंगे? Summation of I equal to 1 to n x1 xi minus yi वेक्टर ऑफ. ओके, जैसे यहाँ पे देखो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है, अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट करती हूँ सो ऑटोमेटिकली ये वाले केस में अगर p की वैल्यू में 1 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन. Okay, so this is the equation for the Manhattan distance. Clear, understood? Any doubt up to this? Yes or no? Okay, so where the n is what here, the number of variables, कितनी number of variables और कितनी number of data set है हमारे पास, उसका xi और yi distance. ओके, मीन्स अगर ये वाला अगर डेटा पॉइंट है फर्स्ट, अगर 10 नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक ये ग्रिड के अंदर. सो ये वाला जो पॉइंट है उसका xi मीन्स x1 y1 उसका वेक्टर, देन x2 y2 सेकेंड डेटा पॉइंट का, एंड सो ऑन अप टू द x10 y10. ओके, सो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैसे होगा, x1 minus y1 plus x2 minus y2 and so on up to the xn minus yn. Okay, so if you try to visualize the distance evaluation by using the Manhattan distance, so it will look like this. Okay, like grid. इस तरह से हम उसको डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रिड फॉर्म में, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ये वाले येलो जो पॉइंट है उस तरह से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is called as a taxicab geometry or a city block distance. Okay, as I said, Manhattan distance is called as a taxicab distance or the city block distance to calculate the distance between the two real valued vector. The third point is the Euclidean distance. Okay, what is the Euclidean distance? So here the Euclidean distance calculate the distance between two real valued vector. Okay, similarly Manhattan distance के जैसे ही. So mostly आप लोगों ने ये सुना होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, आप लोगों को पता होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, कब यूज करते हैं. ओके, सो मोस्टली वी यूज द यूक्लिडियन डिस्टेंस व्हेन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू रोज of data that have the numerical values like some floating point values or some integer point values. Okay, so if the column have the values with the different scales, so it is commonly to normalize or standardize the numerical value across all columns and prior to calculate the Euclidean distance. Otherwise the column that have large value will dominate the distance measures. So Euclidean distance is calculated as the square root of the sum of squared difference between the two vectors. ओके, सो यहाँ पे ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे मिला, जैसे यहाँ पे बताया था मीन कॉस के डिस्टेंस के अंदर p इक्वल टू 2 वैल्यू अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो क्या हमें मिलता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस. ओके, यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करके देगा. तो यहाँ पे देखो xi माइनस yi वेक्टर ऑफ xi माइनस yi, p की वैल्यू अगर 2 है और 1/2 मीन्स व्हाट, यहाँ पे होगा रूट, उसका स्क्वायर रूट बनेगा. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ summation of I equal to 1 to n xi minus yi whole square. So this is the formula for Euclidean distance. Okay, so this is the formula for the Euclidean distance. So Euclidean distance is calculated as the square root of sum of all the square difference between the two vectors. So if the distance calculation is to be performed thousands of million times, it is common to remove the square root operation in an effort to speed up the calculation. So Euclidean distance formula can be used to calculate the distance between the
टू डेटा पॉइंट्स, टू रियल वैल्यूड वेक्टर्स। तो इस तरह से हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस मिलेगा। मैनहट्टन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से, और यूक्लिडियन डिस्टेंस डायरेक्टली ऐसे। So Euclidean distance is one of the mostly used Euclidean distance metric. Sorry, so it is calculated using the mean Minkowski distance. Okay, so Minkowski distance क्या है हमारा? यहाँ पे ये वाला हमारा distance है। So अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू 2 पुट करेंगे, so Euclidean distance हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। Okay, so next is the Euclidean distance and Manhattan distance. तो यहाँ पे देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हमारे दो डेटा पॉइंट्स है a एंड b। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्टली ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, तो वो क्या है? यूक्लिडियन डिस्टेंस है। ओके, यूक्लिडियन डिस्टेंस d2 a, b, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 3.6। तो यहाँ पे बस डायरेक्टली मैंने बस डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे होता है। और यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस है। सो मैनहट्टन डिस्टेंस के अंदर d1 डिस्टेंस कंसिडर किया है a टू b का डिस्टेंस, तो इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा? 5। सो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे मैनहट्टन डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला यूज करके इसका। ठीक है, सेकेंड वाले केस में सॉल्यूशन दिया है कि ये पूरा ग्रिड है इसके अंदर। सो ये जो यहाँ से यहाँ तक के हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पॉइंट P1 टू P2। तो P1 पॉइंट कहाँ पे प्लेस है? 1 1 पे प्लेस है। P2 पॉइंट कहाँ पे प्लेस है? P2 4 एंड 5, और 5 और 4। ओके, ये वाला और ये वाला कंसिडर किया है। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर x1 माइनस y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट P1 P2 देन अगेन P1 P2। सो 5 P2 का पॉइंट 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1, उसका स्क्वायर करके हमें क्या मिलेगा? 5। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट P1 टू P2 5। अगर हम मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, सो 5 माइनस 1 मॉड ऑफ, ओके, मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से, 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 7। ओके, सो ये होगा 7। ओके, 3 एंड 4। मैनहट्टन डिस्टेंस 5 माइनस 1, यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे होगा 4 माइनस 1, दैट इज 3। सो टोटल डिस्टेंस क्या है? मैनहट्टन डिस्टेंस 7। ओके, सो दिस इज अ यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड मैनहट्टन। थैंक यू।